Okay. So we are discussing regarding impairment. Okay, तो impairment, what is impairment actually? Impairment का meaning क्या है ये समझना है आपको. Impairment का meaning है, सपोज आपके पास एक मोबाइल फोन है सैमसंग का, ठीक है. सैमसंग का मोबाइल फोन अच्छा चल रहा, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज विद द मोबाइल फोन, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, ठीक है. और एक दिन क्या होता है, आपका मोबाइल फोन सैमसंग का आप 20,000 में लिए, एंड ये मोबाइल फोन एक 20 डेज के बाद, आफ्टर 20 डेज आपके हाथ से गिर जाता है. ओके ओके, सो ये ड्रॉप हो जाता है, एंड ड्रॉप होने के बाद थोड़ा सा क्रैक आ जाता है स्क्रीन में, और थोड़ा सा स्क्रीन भी ब्लिंक करता है. So do you think, are you going to get the same kind of experience from this mobile phone what you used to get before when you purchased the mobile phone 20 days back? Please tell me yes or no. No, sir. No. Understood fact. क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन गिर गया है, गिरने से डैमेज हो गया है, और वो डैमेज होने से we say it as impaired. What we say? Impaired. What we say? Impaired. That means if you, now that is a damaged piece, impair हो गया है, यानी उसका कुछ उसमें क्रैक आ गया है, ठीक है ना. तो that is called impairment. Now because of impairment the value of this phone has fallen. The value of this phone in the market has not, it definitely appreciate तो नहीं होगा, depreciate ही होगा. Understood fact है, इसका value market में गिर गया है, कम हो गया है. That is what we call impairment. Okay, fine. So this is a general way of understanding the concept of impairment. 20,000 का फोन अगर आप 15 डेज के बाद अगर सेल करने जाओगे तो कोई भी आपको 19,000 देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर उसको क्रैक लग गया है, क्रैक हो गया, वो गिर गया, क्रैक हो गया, स्क्रीन ब्लर हो गया, ब्लिंक कर रहा है बार बार, तो पीपल विल बी पेइंग यू समवेयर अराउंड 5,000. बोलेंगे, वो बोलेंगे ये तो बेकार फोन है. सो ये आपका इम्पेयरमेंट होता है. क्या होता है? ये आपका फोन इम्पेयर्ड हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत कम हो गया मार्केट में. फाइन. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड this concept of impairment from the perspective of tangible assets and intangible assets. In both the cases the concept is same. Tangible assets are something which have physical substance, that means which exist physically, and intangible assets does not have physical substance. That means documented रहेगा, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. ओके, सो इट डज नॉट हैव ए फिजिकल सब्सटेंस. नाउ इम्पेयरमेंट कैसे मालूम करेंगे? एज पर द IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, व्हेन द कैरिंग अमाउंट is greater than the recoverable amount. Then we say there is a, I will explain you, don't worry, impairment loss. What I mean to say here, carrying amount is nothing but the amount at which you show the asset in your books, in the balance sheet. Suppose carrying amount एक मशीन का 1 लाख है, एंड उसका रिकवरेबल अमाउंट, अभी समझो रिकवरेबल अमाउंट, सपोज एग्जांपल समझो आप उसको बेचने गए तो आपको जो वैल्यू मिलेगा. व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू गो इन द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, what you are getting from the market for this particular asset, so you are getting only 80,000. That means, do you think its value has increased or decreased? Definitely decreased. Why will it decrease? I have said the reason to you. Maybe there may be some damage, or maybe its performance has declined, maybe it has become old, maybe it is not able to give the same experience what it used to get, what it used to give in the before, in the before time when you purchased it. There can be n number of or numerous reasons. Okay, so 20,000 is what is your impairment loss. Okay,
and this has to be shown in the P&L account because any fall in the value of asset is a expenditure. So now let us see in the textbook what is the recoverable amount. We'll understand that even in a more better way, and we'll go ahead with the problems. Chapter number 5. So I was in this. Let us see the impairment. So impairment comes under International Accounting Standard 36. This deals with impairment of assets, and recoverable amount is nothing but, I will tell you, it is nothing but the higher of fair value less cost of disposal and value in use. So don't worry, I am explaining you that. So carrying amount is nothing but the amount which you show in the books. I'll just write book value, okay, for you to easily understand. Recoverable amount is nothing but higher of A and B. A is nothing but selling price minus cost of disposal. I'll make it more easier. Suppose आप 200 रुपए में कोई चीज बेच रहे हो और उसको बेचने का आपको एक्सपेंडिचर हुआ 20. Now you'll ask me, sir, ये क्या expense है? Suppose you paid commission to agent, okay, for disposing this particular something what you have. So you get 180, okay. So that 180 I can also say net realizable value, or else if you want to keep in mind, you can keep it as selling price minus cost of disposal or fair value minus cost of disposal as they are showing in the textbook. Selling price बोलो या fair market value बोलो या और fair value, आपकी मर्जी. Second point is value in use. Suppose you are not able to get the value of this fair market value of this asset, you can also find out the value in use. What is value in use? Suppose I bought a machinery. I spend 1 lakh rupees on this, $1 lakh suppose. And every year it is giving me, and the depreciation is 10%. Every year this machine is giving me, and plus I am also paying borrowing cost like 2% interest on this. Whatever the machine I bought it on loan. So suppose 12% is nothing but my cost of capital. Okay, cost of capital. That means this is the cost what I am incurring for this machine. So I will get some cash. This machine I will use for production purpose, and I will definitely generate some cash inflows every year. So first year 20,000, second year 30,000, third year 60,000, like that. I'm just getting some cash inflows, and 12% is what is my cost of capital. So I will discount this values. I will discount this values at the rate of 12%. Okay, got my point? I will discount these values at the rate of 12%, and I will get present values of this. So suppose this is 18,000, this is 24,000, for example, this is 56,000. Example बता रहा हूँ. So you will get present value of cash inflows. Mamta, are you able to follow what I'm saying? Hello? हाँ सर. ममता, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है, ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यूज का? हाँ सर. आपको पता है, ये आपको बीबीए में था? हाँ सर. हाँ. ओके ओके गुड. तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगा, एंड वैल्यू इन यूज का मतलब वही है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी. तो आपको ये पर्टिकुलर मशीन को यूज करके क्या कितना आपको मतलब कितना पैसा आ रहा है आपके पास उसको हम वैल्यू इन यूज बोलते हैं. ठीक है, तो इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देखे थे वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट. So this is nothing but the present value of future cash flows, value in use. Present value of cash flows or the other economic benefits that an entity expects to derive from use of an asset and its ultimate disposal. ठीक है, मतलब उसको यूज करके जो भी हमको आएगा, सपोज हमको आएगा $40,000,
एक एग्जांपल बात, अच्छा 80,000 $60,000 डॉलर्स आएगा, तो ये आपका वैल्यू इन यूज होगा। इसको आपको कंपेयर करना है इससे, ठीक है। सपोज अब ये है आपका $70,000, ये है आपका 60, तो हायर अमाउंट कौन सा होगा? 70, दैट विल बी यूर रिकवरेबल अमाउंट। और वो रिकवरेबल अमाउंट आपको किससे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो अब सपोज आपका कैरिंग अमाउंट है 1 लाख and recoverable amount right now I have found out as 70,000, that is the higher of these two. And definitely you can see I am showing more in my books, but in actuality its value has fallen down, so there is an impairment loss of 30,000. Okay, Actually, we did this, sir. अंडरस्टूड फैक्ट, मतलब मैं अपने बुक्स में ज्यादा बता रहा हूं जबकि उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो चुकी है, तो कम हो गई है मतलब इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। सो अब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप जल्दी चैप्टर फिनिश कर सकते हैं, एंड ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सो यहां तक सब क्लियर है, एंड लेट्स गो फॉर द अनदर थिंग। अच्छा, अब देखो आपको एक चीज और बताना है मुझे, कैश जनरेटिंग यूनिट। तो ये CGU किसको बोलते हैं? ये एक कुछ स्मॉल आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं that generates cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets। समझो इसको क्या है, मतलब सपोज कैश जनरेटिंग यूनिट की बात चल रही है, CGU। CGU मतलब ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ एसेट्स समझो, ग्रुप ऑफ एसेट्स जो इंडिपेंडेंट है दूसरे एसेट्स के पर्सपेक्टिव से। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे एक मशीन की बात कर रहा हूं, मशीन एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। क्यों है? क्योंकि मशीन, यहां पर एक बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग जो है ये भी एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, मशीन भी कैश जनरेटिंग यूनिट है, क्योंकि बिल्डिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन, मशीन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बिल्डिंग। This can be individually sold and you can get a value for this. This can be individually sold and you can get value for this. Okay, so those are cash generating units. Both are cash generating units individually. But अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का यहां पर स्ट्रक्चर है, इसमें एक लिफ्ट है, एक विंडो है, तो आप इसमें कैश जनरेटिंग यूनिट किसको बोलेंगे? लिफ्ट खरीदने के लिए भी पैसा लगता 4-5 लाख, विंडो खरीदने के लिए भी 1000 रुपीज लगता। Is this lift a cash generating unit? Is this window a cash generating unit or a building is a cash generating unit? Tell me, both of you. Building, sir. Why building? Because you cannot sell the lift individually and get money. Lift will be sold along with building only. Okay? Both of you got my point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So something which is independent, यानी जिसके ऊपर, जिसको आप इंडिविजुअली बेच के पैसा कमा सकते हो, वो है आपका कैश जनरेटिंग यूनिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी ए है, उसका एक ब्रांच बैंगलोर में है, एक ब्रांच हैदराबाद में है, तो दोनों भी कैश जनरेटिंग यूनिट होते कि नहीं होते? होते। इसको बेचे तो भी पैसा आता, इसको बेचे तो भी पैसा आता ना? दैट्स इट। लेकिन सपोज अब हम उसको ऐसा बताएंगे, हाँ, एक यहां पर कंपनी, ये एक ब्रांच है और इसके अंडर में एक और ब्रांच है, ठीक है ना, ए बी। तो अगर इसको इंडिविजुअली बेच सकते हैं तो ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, इंडिविजुअली नहीं बेच सकते, इसके साथ ही अगर क्लब करके बिकेगा तो कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं होगा। ओके, अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। गुडविल को आप बिजनेस से सेपरेट कर सकते हैं क्या? इज इट सेपरेबल और इनसेपरेबल? Inseparable.
नो इट इज इनसेपरेबल। Yeah. मैं ऑलरेडी इंटेंजिबल एसेट्स का चैप्टर पढ़ा है, इतने अच्छे से बताया मैं। हाँ सर, इंसेपरेबल ही बोला। हाँ, व्हाई इट इज इनसेपरेबल? बिकॉज आपका बिजनेस का गुडविल आपके बिजनेस के साथ ही रहेगा। उसको आप बेचोगे तो दूसरा कंपनी उसको ले लेगा, लेकिन वो बिजनेस के साथ, बिजनेस से एसोसिएटेड रहेगा। यू कैन नॉट सेल दिस गुडविल टू समवन सेपरेटली, इट विल बी सोल्ड अलोंग विद द बिजनेस ओनली। यानी जब बिजनेस को सेल करोगे तो अब आप गुडविल अमाउंट भी उसको कोट करके एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हो। एम आई राइट? Yes sir. You cannot sell this goodwill separately, but can you sell the machine of this business separately? Yes. Yes. Land, yes. Building, yes. ऐसा. So something which is inseparable is not a cash generating unit any point of time. Okay? Okay. So it is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets. That's it. So we have got everything here and got all the information. तो अभी इसमें कुछ है नहीं। इम्पेयरमेंट कैसे होता है मैं आपको बता दिया। डैमेज होना, या तो फिजिकल डैमेज या लीगल डैमेज या टेक्नोलॉजिकल डैमेज, कोई भी डैमेज रहने दो। अब जैसे लीगल बोल रहे हो आप, लीगल डैमेज कैसे होगा? सपोज एक प्रॉपर्टी है आपका, प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन क्रिएट हो गया, तो इसका वैल्यू ज्यादा होता कम होता? कम होता सर। दैट इज इम्पेयरमेंट। अब आपके पास एक फोन है सैमसंग का, आप क्या कर रहे हो, वो डब्बा को लाके अपने घर पे एक फोन ले लिया आप, सैमसंग गैलेक्सी कुछ की M30 फॉर एग्जांपल। भाई मेरे को फोन्स के बारे में नहीं मालूम। ये लाके आप क्या करें, अलमारा में रख लिए और अपने घर पे बोले कि मैं इसको 10 ईयर्स के बाद यूज करता हूँ। देखो तुम 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, तो आपके जब कजिन्स वगैरह हंस रहे, ये क्या पागल है, इसको एक नया दिमाग में आया, 10 ईयर्स के बाद कोई आज का टेक्नोलॉजी यूज करता क्या? आप यूज करके देख लो, 10 ईयर्स के बाद इसका वैल्यू है नहीं सर। जीरो, इम्पेयरमेंट ऐसा। दैट इज टेक्नोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ओके। तो यहां तक सब क्लियर है? दिस ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड यू। अच्छा, अगर like fair market value you can only consider when there is an active market for some asset. अगर मार्केट नहीं है तो कॉस्ट पे जाना है आपको। किस पे जाना है? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे, कभी भी। दैट्स अ यूनिवर्सल रूल। तो अभी क्या होता है आपके दिमाग में, तो सर कॉस्ट पे जाना है तो फिर हम कैसे करना सर? आप तो बोल रहे हैं इम्पेयरमेंट मतलब कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट दोनों का, दोनों में मतलब अगर इफ योर मतलब इफ योर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट देन दिस impairment, and in this you are saying like fair market value minus cost of disposal and value in use. So like ये नहीं है तो कैसा सर? ये नहीं है तो ये ले लो। ये तो रहता ना वैल्यू इन यूज, तो तुम फाइंड कर सकते ना। Everything in the world doesn't have a market value, and cost is already available here. Cost तो carrying amount है, so you can take value in use. That means this is 0 and this is suppose 100 rupees, so this is the one which you are taking and comparing with carrying amount. Okay? Yes sir. अच्छा ममता, are you able to understand or is going Greek and Latin for you? पक्का ना? हाँ पक्का सर। थैंक यू। ओके, सो इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन डिक्रीज। मतलब आप क्या करें, अपना प्रॉपर्टी को 1-2 साल के बाद चेक कर रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ। कम हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस। तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गो फॉर दिस क्वेश्चन। आई गो फॉर CGU in more details and wind up the chapter.
सर अपन ये कर लिए सर, हाँ इम्पेयरमेंट अपन कर लिए शायद, नहीं करे, पढ़े वैसा ध्यान होने को, इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं करे यार, नहीं करे, चैप्टर नहीं नहीं करे। करे। हाँ, आप मेरे को वीडियो दिए थे, हाउ वीडियो दिए थे आप, हाउ। नहीं इम्पेयरमेंट का मैं नहीं दिया यार शायद, मुझे पढ़े याद वैसा नहीं है। ध्यान है, मैं पढ़े वैसा ध्यान है, इसके लिए बोल रहा मैं। हाँ हाँ ओके ओके, पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं कल टैंजिबल एसेट शुरू कर दूंगा, कल तो मॉर्निंग हम्म, टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों बाइंड कर दूंगा, बाइंड अप कर दूंगा मैं। ओके। ओके सो हैव यू डन दिस प्रॉब्लम? यस सर। सो व्हाट आर दे हाँ सेइंग? देखो आपका मशीनरी का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 95 है, वैल्यू इन यूज 9000 है, दोनों में से हायर वैल्यू 9500, एंड व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट? 10500। 10,500। सो इम्पेयरमेंट इज ऑफ 1000, क्यों? क्योंकि आप बुक्स में ज्यादा बता रहे हो और मार्केट में उसका वैल्यू कम हो गया है, सो 1000 इज इम्पेयरमेंट लॉस टू बी ट्रांसफर टू P&L. And I've already explained you right now about the cash generating unit. Okay, तो कैश जनरेटिंग यूनिट, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक यहां पर माइंस है, एक रेलवे लाइन है, इस माइंस को 40 किलोमीटर पे जाके एक मेन लाइन को कनेक्ट होता, एंड ये रेलवे लाइन जो है कंपनी वाला बनाया, माइनिंग कंपनी, एंड इसमें जो ट्रेन है वो खाली कोल लेके जाता। ओके, तो आपका ये जो रेलवे ट्रैक है, क्या ये रेलवे जो आप ऑपरेट कर रहे हो, इज दिस ए सीजीयू और दिस माइंस इज ए सीजीयू? ममता यू शुड टेल मी। हाँ सर। No, which one is the CGU? Mines is the CGU or the railway track, railway line is the CGU? What is the, see again my question, there is a mines, coal mines, okay? Mamta, hello, हाँ सर, are माइक you का follow? ऑफ हो गया। हाँ सी देखो, हाँ यहाँ पर एक कोल माइंस है, ठीक है? हाँ ये कोल माइंस में एक कोल माइंस का कंपनी ऑपरेट कर रहा, और वो एक ट्रेन का लाइन भी यहां से 40 किलोमीटर तक एक ट्रेन लाइन बनाया, ये ट्रेन हाँ लाइन जाके एक मेन लाइन को कनेक्ट होता, जिसपे ये ट्रेन जाके फिर दिल्ली, बॉम्बे, बड़ा बड़ा सिटीज में जाके कोल को डंप करता, वो शिपमेंट से फॉरेन हाँ को एक्सपोर्ट कर रहे। तो ये जो रेलवे लाइन है, मैं इसको कैश जनरेटिंग यूनिट बोल सकता हूँ क्या, या माइंस को बोलना कैश जनरेटिंग यूनिट? माइक। माइंस को बोलना, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज ये रेलवे ट्रैक को मैं सेपरेटली किसी को सेल करे तो मुझे कुछ आने वाला हाँ नहीं है, और मैं इस पे पैसेंजर हाँ ट्रेन के नहीं चला रहा हूं, क्योंकि सेपरेटली मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाँ माइंस। ओके, एंड माइंस इज द वन विच इज जनरेटिंग कैश फॉर मी, नॉट दिस रेलवे ट्रैक, ये तो हाँ उससे कनेक्टेड है। फाइन, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो अभी नेक्स्ट वाला आप लोग ये क्वेश्चन करो सीजीयू का, एंड यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है दो, जस्ट गो फॉर दिस एग्जाम्पल, एंड ये मिनी मार्ट वाला भी एग्जाम्पल है, इस पे भी जाओ, फिर विल गो फॉर दी गुडविल एंड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, लास्ट टॉपिक है, फिनिश करेंगे इसको। चलो चलो फटाफट करो, इसको फिनिश करना है। ये एग्जाम्पल्स पे जाओ, आई एम शोइंग यू द स्क्रीन। हाँ, जस्ट गो फॉर दिस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्सप्लेन करा, एग्जाम्पल नंबर 2 ममता शुड एक्सप्लेन मी। ओके ममता, इज इट ओके ना? हेलो, हाँ सर। ओके ओके सर। ओके ओके ओके।
Yeah. Yes. So bus has an arrangement with the town's authorities to run bus service on 4 routes in the town. Separately identifiable assets are allocated to each of the bus routes. I have already told you, separately identifiable assets means you can sell them separately. Those are not dependent on each other. Like machinery not dependent on building, building not dependent on machinery, can be sold separately and you can generate cash out of it. So, three routes are running at a profit and one at loss. So, the bus company suspects that there is an impairment of assets on loss-making route. However, the company will be unable to close the loss-making route because it's a service they are running. They have to give to the people in the town. And because it is under an obligation to operate all 4 routes as a part of its contract with local authority. Consequently, company should treat all 4 bus routes together as CGU. Why? Because all are separable and can be identified separately without one depending on another. Okay, so all 4 are CGUs. Go for this question. Please go for this question and ask me if you have any doubts. Okay, sir. Yeah. So have you gone to the question? Shall I wait for a while? Sir, gone to the question, sir. Yeah, Mamta, have you finished? हाँ सर. कोई डाउट्स है आप लोग को? कोई डाउट्स है? समझ में आ गया ये कैसा करना है? मतलब हाँ आपको सर. ये देखना है दोनों भी सेपरेटेड रहना चाहिए, दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, दोनों को हम सेल करते हमको पैसा आना चाहिए, तो हम उसको सीजीयू बोलेंगे। अगर एक दूसरे पे हाँ. डिपेंड है तो वो जो मेन वाला है उसको उसको सीजीयू बोलेंगे, जो डिपेंडेंट वाला है उसको सीजीयू नहीं बोलेंगे। ओके। हाँ सर. अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट दैट इज। ओके ओके। So property, plant and equipment and separate intangibles will be allocated to CGU units as far as possible. Current assets, inventory and all will be allocated to relevant CGU. Four ways company is made up of 4 CGU. All 4 units are being tested for impairment. Assets and liabilities will be allocated to them as follows. तो जो भी CGU है वो CGU को separately उनका assets वगैरह जो भी उनका है वो allocate कर दो, है ना? और उनका लाइबिलिटीज भी जो रहेगा वो भी उनको एलोकेट कर दो। दैट्स इट, बिकॉज दोज आर ऑल 4 डिफरेंट सीजीयूज, है ना? दोज आर सेपरेबल, आइडेंटिफाइबल, दैट मींस दोज कैन बी सोल्ड विदाउट डिपेंडिंग ऑन अनदर सीजीयू, नो प्रॉब्लम। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इंपेयरमेंट, क्या करोगे? नेट फिगर ऑफ ऑल द सीजीयू should be taken, added up, and you can also check the recoverable amount and see whether there is a impairment loss or not. Okay. Now let us see for goodwill and impairment of assets, allocating goodwill to CGU. See, CGU को goodwill कैसे allocate करना है? Goodwill acquired in a business, see, first of all, goodwill can only be identified when you acquire some particular business. Suppose एक बिजनेस है एक्स कंपनी, ये लोग अपना गुडविल है बोल के बोलते हैं मार्केट में, आई हैव अ वेरी गुड। इस गुडविल का वैल्यू क्या है नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम?
अरे बताना मुश्किल है, गुडविल ऐसा चीज है इसका वैल्यू बताना मुश्किल है। वो एक 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 रुपीज भी हो सकता है, लाइक 10 करोड़ भी हो सकता है, 5 रुपीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ए कंपनी जेड कंपनी को अक्वायर कर रहा है एंड पेइंग 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, ओके, तो कैन आई से दिस इज द वैल्यू, दिस इज द गुडविल? Yes, व्हाई sir. दिस इज द गुडविल? भाई दिस कंपनी एक्स हैज बीन अक्वायर्ड बाय कंपनी ए, तो अक्वायर करा मतलब क्या, इसके पूरे खरीदा। एसेट्स को खरीद लिया, Hmm. इसके पूरे लायबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दिया, सब करने के बाद उसको एडिशनल 10 लाख पे करा, तो कैन आई से दैट इज गुडविल? Yes, sir. Yes. So that goodwill is nothing but that goodwill is the goodwill which you got when a business acquired another business. तो यहाँ पर goodwill का वैल्यू हमको मालूम चलता है। यहाँ पर goodwill का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, अब एक कंपनी क्या कर सकता है, अपने बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीज लिख सकता है गुडविल। कितना लिख सकता है? 10 lakhs. सो गुडविल आप किसी कंपनी को अक्वायर करोगे तो उसका वैल्यू मालूम होगा, नहीं तो ऐसे तो लाइक एक्स कंपनी अपना गुडविल 10 रुपीज भी बता सकता है, 1 करोड़ भी बता सकता है, 10 रुपीज भी बता सकता है, 5 रुपीज भी बता सकता है, उसका मर्जी है। Hmm. So will this be acceptable? Never. So when one company acquires another company, then we know the value of the goodwill properly. Okay? Okay. अच्छा, and this goodwill, whatever I'm showing you 10 lakh, ये goodwill जो है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, मतलब गुडविल इसका इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? Impairment review. मतलब एवरी ईयर वी नीड टू चेक वेदर गुडविल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, Hmm. क्यों ऐसा करेंगे? गुडविल इज सच ए एसेट विच कैन नॉट बी अमोर्टाइज्ड। देखो, एक डिप्रिसिएशन होता है, एक अमोर्टाइजेशन होता है। डिप्रिसिएशन किसका होता है? टैंजिबल एसेट्स, land, building, sorry, land is appreciable, building, machinery, etc. Intangible assets are amortized. Hmm. And goodwill being an intangible asset will definitely has to go in this category, but goodwill cannot be amortized. Why land cannot be depreciated? Because land doesn't have an expiry date. लैंड आपका लाइफ लॉन्ग तक आप अपने पास रख सकते हो। आप अगर आदमी मरा भी तो उसका लैंड रहता है वहीं पर। वैसे ही गुडविल भी, एक पर्सन लिविंग है तो भी गुडविल रहेगा, मर गया तो भी। गांधी जी का गुडविल खत्म हो गया क्या? नहीं सर. अभी भी पेपर नोट पे गांधी जी है ना? हाँ तो गुडविल अपन रहे तो भी रहेगा, नहीं रहे तो भी रहेगा, लेकिन वो गुडविल अमोर्टाइज नहीं होगा क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट नहीं है। बट वो गुडविल ज्यादा कम हो सकता है, इसीलिए उसका इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है, यानी कितना बड़ा कितना कम हुआ ये देखना है। समझ में आ रहा? हाँ सर. हाँ सर मतलब उसको रिवैल्यू करना है आपको, दैट्स व्हाट। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। Goodwill acquired in a business combination does not generate cash flows independently of other assets। यानी गुडविल जो आप अभी एक कंपनी को परचेस किया तो उसमें गुडविल क्रिएट हुआ, उससे आपको पैसा नहीं आने वाला है, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है ना? मतलब पैसा नहीं आने वाला, मतलब अब आप मेरे को बोलोगे सर ऐसा कैसा, सर गुडविल से भी तो पैसा आता ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता बोल के, इंडिपेंडेंटली आप उसको अलग नहीं कर सकते। मतलब वो बिजनेस के साथ एसोसिएट रह के ही पैसे देगा आपको गुडविल। समझ में आया? हाँ हाँ. गुडविल, अब देखो तुम्हारा गुडविल अब मोहित है, मोहित का एक गुडविल है, वो मोहित के साथ ही रहेगा ना। हाँ, मोहित को पैसा मोहित के गुडविल के वजह से आएगा। गुडविल को सेपरेट कर सकते क्या तुम्हारे से? नहीं सर. एक बिजनेस का लोगो, अब जैसे मर्सिडीज बेंज का लोगो ये है, तो ये लोगो से भी पैसे आता है उसको। लोग मर्सिडीज को, कोई लोग इंडिया में ऐसे जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो क्या देखते हैं, अरे ये मर्सिडीज का ये कभी भी सामने आता रही है, मस्त रहता गाड़ी में। अब ऑडी है, बहुत से लोगों को जो गांव से, विलेज से, टाउन से आते हैं, वहाँ वो गाड़ियाँ नहीं रहती है, इंपोर्टेड व्हीकल्स। तो वहाँ पर ऐसे करके ऑडी का ऐसा 5 साइन आता, अरे आई वेंट टू, अरे नैनो हैदराबाद की मैं गया रे, वहाँ पर ऐसा गाड़ी देखा, उसको ऐसा 5 रहता, बैंगल जैसा, ये वो बोल देते ना वो लोग, बात करते नहीं करते? हाँ सर. तो ऑडी को लोग उसका नाम से नहीं, उसका साइन से भी पहचानते कि नहीं पहचानते? पहचानते सर. That is creating a goodwill for it. So but can you separate this goodwill from the business?
नो नो ये लोगों को आप ऑडी से अलग करके देख सकते हो? नहीं, दैट इज इनसेपरेबल। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ऑडी कंपनी के साथ ही रहेगा। ऑडी कंपनी किसी को बेचोगे तो वो कंपनी के पास वो गुडविल चले जाएगा, बट गुडविल ऑडी के साथ ही रहेगा कभी भी, ये लोगो नहीं जाएगा ऑडी से अलग। गॉट माय पॉइंट? ओके हाँ जैगुआर को खरीदने के बाद भी टाटा जैगुआर लैंड रोवर का गाड़ी पे टी नहीं लगाता है, टाटा का सिंबल नहीं लगाता है, वो लैंड रोवर जैगुआर ही रहता है, वो गुडविल उसके साथ ही रहेगा। दैट्स व्हाट। सर मगर So- कभी कभी आप सिर्फ लोगो भी बेच सकते ना सर? लोगो अभी तक तुम कौन से कंपनी को देखे यार बेचते हुए? कंपनी के साथ ही लोगो बिकता है यार, लोगो ऐसे नहीं बिकता। कौन से कंपनी का लोगो बेचे तुम मेरे को बताओ आज तक, एक एग्जांपल दो। लोगोस कैसा बिकता है यार? नाइकी कंपनी अगर किसी को बेचना है तो नाइकी वाला अपना कंपनी भी बेच देगा, उसका लोगो भी उसके पास चले जाएगा। खाली लोगो को लेके वो क्या करेगा दूसरा वाला? हाँ सर व्हाट विल यू डू बाय टेकिंग द लोगो ऑफ ए कंपनी? क्या काम का है आपको वो? ओके उसका राइट्स आपको आप खाली लोगो का राइट्स लेके क्या करोगे आप? वो उसके लिए उसके लिए तो कॉपीराइट रहेगा ना, वो तो पैसा कमाएगा उससे, उसके लिए इंटेंजिबल है वो तो। ओके ओके हाँ ठीक है हाँ, गुडविल तो बिजनेस के साथ ही जाएगा ना बॉस। ओके हाँ तो करेक्ट करेक्ट आप बिजनेस के साथ उसको इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते, डिपेंडेंट है बिजनेस पे वो। That's what. Now, so goodwill acquired in a business combination does not generate cash flow independently of other assets. It must be allocated to each of the acquirer's cash generating unit. यानी गुडविल को आपको बांटना है, एलोकेट करना है, क्योंकि गुडविल आपका जो गुडविल है 10, सपोज आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपका गुडविल 10 लाख का है, तो ये 10 लाख का गुडविल जो है आप इसको डिवाइड कर दो अपने एसेट्स में, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ठीक है? सपोज आपके 4 बिजनेस है ए बी सी डी, तो आप ये 10 लाख को उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है एलोकेट कर दो। क्या करते हैं? एलोकेट मतलब, और एलोकेशन भी कैसे होता है? जो सबसे बेस्ट है उसको ज्यादा गुडविल है, जो कम है उसको कम गुडविल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर हाँ सर हाँ, मतलब कैसा है, तुम्हारा 2 शॉप है, एक काचीगुड़ा पे, एक हिमायत नगर पे। काचीगुड़ा वाला बहुत अच्छा है, वो 10 ईयर्स से काम कर रहा, ये 5 ईयर्स पहले सेटअप करे। इसको कस्टमर दिन में 1,000 कस्टमर आते, इसको दिन में 100 कस्टमर आते, तो ज्यादा गुडविल किसको है? काचीगुड़ा वाले को किसको है गुडविल ज्यादा? काचीगुड़ा वाले को। दैट्स व्हाट। तो इसको ज्यादा एलोकेशन होगा। दैट्स व्हाट। ओके Goodwill acquired in a business combination does not generate cash flows independently of other assets. It must be allocated to each of the acquirer's cash generating units or groups of cash generating units that are expected to benefit from synergies of combination. मतलब इन CGU को आप क्लब करके ही पैसा कमा सकते हैं, अलग अलग करके नहीं कमा सकते। समझ में आ रहा? अब जैसे एग्जांपल, मेरा एक रेलवे नेटवर्क है, अमेरिका में थोड़े प्राइवेट लोग हैं, अब इंडिया में भी आ रहा वो प्राइवेटाइजेशन, जिनका खुद का रेलवे नेटवर्क चलता है। क्या चलता है? रेलवे नेटवर्क। वो लोग अपना ट्रैक भी खुद ही लगाते, स्टेशन भी वो लोग ही बनाते। तो ये मेरा एक रेलवे नेटवर्क है। मैं सपोज अब इंडिया में वो कॉन्सेप्ट लेके आया, मैं टाटा कंपनी हूँ, हैदराबाद से लेके बैंगलोर का मैं एक रेलवे नेटवर्क स्टार्ट किया। जैसे बसेस भी ऑपरेट होता है ना, वैसा रेलवे, हैदराबाद बैंगलोर, यहाँ पर मैं फास्ट ट्रेन चला रहा हूँ, स्पीड ट्रेन, अलग नेटवर्क लगा के, स्टेशन मेरा। अब इसमें मैं 3 बिजनेस और ऑपरेट कर रहा हूँ, इसमें पूरा जितना भी होटल वगैरह है मेरा ताज ग्रुप का देख लेता हूँ। ताज ग्रुप इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ केटरिंग। ओके। और दूसरा यहाँ पर एक गाड़ी का सर्विस भी दे रहा हूँ मैं सबको, टैक्सी सर्विस। तो ओला के जैसा मैं एक कंपनी फॉर्म करा, टोला टाटा का टोला। सो समथिंग लाइक दैट, टैक्सी सर्विस भी रन कर रहा हूँ, और किसी और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स, मतलब एम्बुलेंस सर्विस भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का टाटा का हॉस्पिटल्स भी है। तो मैं बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर कर रहा हूँ, होटल का भी बिजनेस कर रहा हूँ, टैक्सी सर्विस भी दे रहा हूँ, हॉस्पिटल का भी दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन बिजनेस क्या है बॉस? ये सब जितने भी बिजनेस में चल रहे हैं, किसके बेसिस, किसके ऊपर चल रहे हैं? मेनली ट्रेन। ये नहीं रहे तो ये चलते क्या? नहीं सर। तो मेन गुडविल सबसे ज्यादा एलोकेशन किसको होना? ट्रेन्स। बट ये सब सिनर्जीज ऑफ कॉम्बिनेशन है, यानी ये सबके सब इसके ऊपर डिपेंड होके चल रहे।
और इसको भी इनसे फायदा हो रहा, समझ में आ रहा? हाँ सर। तो इन सबको क्लब करके चलाने में ज्यादा फायदा है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम सिनर्जीज ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन होके अच्छा बिजनेस कर रहे वो, ऐसा। So, goodwill acquired in a business combination does not generate cash flows independently of other assets. It must be allocated to each of the acquirer's cash generating units. इसको आपको बांटना है, and that are expected to benefit. That means this cash generating units, whatever you are seeing, or group of CGU are benefiting from the synergies of combination. That means in combination they are doing well. So each unit to which the goodwill is allocated should, अब आपको एक एक को बांटना है ना, should represent the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purpose. मतलब lowest level मतलब सबसे मेन ये लाइन है, तो सबसे पहले इसको देना है आपको। आपको गुडविल को ज्यादातर बांटने का नहीं देखना है, सबसे ज्यादा जिसको एलोकेट कर दिया उसको एलोकेट कर दो पहले, ठीक है? मतलब अगर आप क्या करोगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस टोला, यानी ये सर्विस से करोगे तो इसमें थोड़ा सा एलोकेट होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ऐसा नहीं। अगर इसको 80% चले गया तो नेक्स्ट 20% इसको चले जाता ना, समझ में आ रहा? ऐसा लोवेस्ट लेवल। दैट मीन्स यू शुड नॉट ट्राई टू like divide it in so many terms, so many like fragments, जितना हो सके मैक्सिमम जिसको दे, बड़े उसको दे दिए तो ज्यादातर डिवीजन नहीं होता उसका, समझ में आया? गॉट माय पॉइंट और नॉट? हाँ, ये है पॉइंट, वो वही समझा रहा है वहां पर। अब देखो, represent the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal, मतलब अपन लोग इंटरनली मैनेजमेंट क्या समझ लेता, अरे भाई सबसे ज्यादा जिसमें अपने को पैसा आ रहा उसको पहले अपन एलोकेट कर देंगे, वो बेटर है, बाद में दूसरे वाले को देंगे, तो उससे क्या होता, कम कम डिवाइड होता गुडविल, मतलब ज्यादा से ज्यादा गुडविल पहले वाले को ही मिल जाता है ना। और जो भी आपका गुडविल है वो आपके रिपोर्टिंग सेगमेंट से ज्यादा तो नहीं रह सकता, दैट्स अंडरस्टूड फैक्ट। सो it may be impracticable to complete the allocation of goodwill before first reporting date after a business combination, particularly if the acquirer is accounting for combination for first time using provisional values. The initial allocation of goodwill must be completed before the end of the first reporting period after acquisition. मतलब acquire करते ही first reporting date को आपको allocate कर देना है। चलो अब एग्जांपल देखो। and testing CGU with goodwill for impairment, मतलब goodwill को तो impairment रिव्यू करना है आपको, करना है कि नहीं करना है? करना है। अब देखो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आता है। अब ये देखो आपका सीजीयू है, ये सारे आपके एसेट्स हैं, इसका वैल्यू 66 है, ठीक है? आपका गुडविल है 50 मिलियन का। पहले हम क्या करेंगे, 50 मिलियन का जो गुडविल है, एक सेकंड नहीं, सॉरी गुडविल नहीं है आपका, गुडविल मैं बताता हूँ, गुडविल 6 मिलियन का है। आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, इम्पेयरमेंट रिव्यू 50 मिलियन है। कितना है? 50 मिलियन। तो आपका रिकवरेबल अमाउंट 50 है और आपका करंट पूरा सीजीयू आपका 66 का है, तो इम्पेयरमेंट कितने का हुआ? 16,000। कितने का हुआ? 16 का है ना? हाँ सर, 16 का इम्पेयरमेंट हुआ। अब देखो जो आपका इम्पेयरमेंट, आपका जो गुडविल है वो यहाँ पर है 6, ठीक है? मतलब आप जब बिजनेस एक्विजिशन किए तो आपको गुडविल क्रिएट हुआ 6 का। इसको आपको क्या करना है, एलोकेट करना है। क्या करना है? एलोकेट। हाँ, तो आप कैसे एलोकेट करेंगे हम लोग उसको? करंट एसेट्स पे एलोकेशन नहीं होता, वो एक बात याद रख लो, ठीक है? हाँ। अब देखो एक सेकेंड, एक्चुअली वो गुडविल है क्या? एक सेकेंड में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 66 आपका सीजीयू है, इम्पेयरमेंट करे एंड द इम्पेयरमेंट लॉस आपका 16 का होता, द लॉस विल बी अप्लाइड। हाँ सॉरी, आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितने का है? 66 आपका सीजीयू का वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट आपका। ये आपका रिकवरेबल अमाउंट 50 है, इम्पेयरमेंट कितने का हुआ? 16 का हुआ। तो इम्पेयरमेंट लॉस को आप एलोकेट करो, सबसे पहले गुडविल को एलोकेट करना, उसको किसको करना? गुडविल को। तो गुडविल को एलोकेट कर दिया हम लोग, कितना? 10 मिलियन। गुडविल उतना ही है ना? हाँ सर। बाकी का 6 मिलियन बचे, से किसको एलोकेट करे? बिल्डिंग एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट को, प्रोरेटा बेसिस पे। ओके, कैसे प्रोरेटा बेसिस पे? ये आपका
लाइक 1 और ये आपका 5:1 के रेशियो में होता, तो आप अपना 6 को 5:1 के रेशियो में बांटो, 5:1 आता आपको। इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करना है, व्हाट डिड आई एक्सप्लेन यू, हैज टू बी शोन इन द P&L अकाउंट, एम आई राइट? Yes, sir. हाँ सो विल यू डू दिस क्वेश्चन? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन हाँ, पे जाओ, ये क्वेश्चन पे जाओ, मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, फिर यहाँ से आपका मेन डेटा शुरू होता है, आंसर मैं आपको समझाऊंगा। चलो सर और आप एक बार मेरे को भेजते बोले थे वो क्या कंसल्टेशन का, याद दिलाओ बोले थे ना। मैं भेजूंगा आज पक्का, कुछ हाँ, ये क्लास हाँ, के बाद भेज दूंगा, हाँ सर, मैं भेज दूंगा। हाँ सर, हाँ सर। ओके okay, can you so what is the thing going on here? Fair value less cost of disposal is how much? 2.8 million. How? See, carrying amount is 3 million given, okay, and like we need to find out the recoverable amount. For recoverable amount we want higher of 2, that is fair value less cost of disposal and value in use. So let us see, the company has received an offer, that means company, if it wants to sell it in the market, people are ready to pay 2.8 million, okay. Can I say that is fair value less cost of disposal is not there in the problem, cost of disposal is not at all there, मैं कोई कमीशन वगैरह किसी एजेंट को पे कर रहा हूँ, ऐसा nothing is there, and value in use is like this much, and some adjustment you need to do like cost of dismantling and something like that, 0.6 million, so it is this much, higher is 2.8, and 3 and 2.8 when you compare, the impairment loss is 0.2 million, okay. Okay, sir. Second question you need to do as a homework. Okay, one more topic, reversal of impairment loss. What do you mean by reversal of impairment loss? So previously you have had a impairment loss, now that has reversed, okay. So see, listen here, in some cases recoverable amount of an asset that has previously been impaired turn out to be higher than the assets carrying amount. मतलब क्या हुआ, पहले आपको लॉस हुआ, अब वो रिवर्स हो गया, अब गेन हो गया, आपको क्या हो गया, प्लीज टेल मी, गेन सर, गेन हो गया. Yeah, in other words, there might have been a reversal of some of the previous impairment loss. So the carrying amount of the asset should be increased to its new recoverable amount. तो अब impairment loss आपका जो पहले हुआ था, सपोज पहले मेरा एसेट था 1 लाख का, मैं बताता हूं आपको, मेरा एसेट जो है 1 लाख का था, मेरा कैरिंग अमाउंट ये है, सॉरी, मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 80,000, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 20,000, जिसको मैं P&L में लिख दिया. अब ये रिवर्स हो गया, यानी अब मेरा एसेट का वैल्यू 120 चले गया, 1,20,000 भी जा सकता है, 1 भी जा सकता है, तो अब मैं क्या करना, मेरे एसेट के वैल्यू को 80 बोल के दिखाना या 1 लाख दिखाना, 1 लाख दिखाना,
That is called mark to market. What is that called? Mark to market. Mark to market. Mark to market is nothing but today whatever its value is there in the market, I should show that much. So I will show this 1 lakh in the balance sheet. So there is a reversal of impairment loss of 20,000. Okay, Hmm. मतलब अभी gain हो गया आपको. Okay. So the carrying amount of the asset should be increased to its new recoverable amount. If the asset is carried at revalued amount, then reversal of impairment loss should be recognized in other comprehensive income and accumulated as a revaluation surplus in equity. अब ये जो आपको रिवर्सल हुआ ना, कितने का रिवर्सल हुआ? पहले 20,000 का लॉस हुआ था ना, अब आपको फिर 20,000 का मतलब गेन हो गया. अगर ये रिवर्सल ये 20,000 आपका चले जाता पुराना, अगर 40,000 हुआ तो मतलब 120 हो गया आपका एसेट, तो 120 तो एक्स्ट्रा 20,000 का जो आपका गेन हुआ ना, उसको आप कहाँ लिखते हैं? OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड यू विल बी ट्रांसफरिंग टू इक्विटी. Okay. Mamta, you can check the financial statements video in that I have explained this. Sir. Now, and if the assets have not been previously revalued, the reversal of impairment loss should be recognized immediately in P&L. अगर आप revalue नहीं करे, क्या नहीं करे, Revaluation. और फिर भी रिवर्सल हुआ तो P&L में बताना है. जैसे मैं अभी आपको बताया ना, P&L में निकाल देना है बोल के. हाँ. That's it. Don't worry, tomorrow we'll be doing tangible assets now. I'll be explaining you this concept of revaluation with some 7 to 8 examples. Okay. Okay. So an impairment loss recognized for an asset in prior years should be recovered only if there has been a change in estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. मतलब impairment loss recognized for an asset in prior years, अगर previous कुछ years में आपको impairment loss आप बताए हो, ओके, शुड बी रिकवर्ड ओनली. अगर आप कम बता दिए, ज्यादा बता दिए, यानी एस्टिमेट्स चेंज करें, आप क्या करें? Estimate change. हाँ, तो उसका भी एडजस्टमेंट देना है. Okay. एस्टिमेट चेंज करना मतलब जैसे आप एस्टिमेट चेंज करना किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन है आपका, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन 10% से 12% कर दिया तो उसको एस्टिमेट चेंज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Estimate change. हाँ, बेटर आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखे तो आपको समझ में आता. ये क्वेश्चन रीड करो. Increased to 120. सर क्लियर नहीं है सर, एक बार समझाना सर. हाँ, क्यों नहीं. A head office building with a carrying amount of 140 million is estimated to have a recoverable amount of 90. Impairment loss 50. अब क्या हुआ? After 3 years प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए, रिकवरेबल अमाउंट 120 हो गया. ठीक है. हाँ सर. तो रिवर्सल कितने का हुआ? 30 का हुआ. हाँ. ठीक है ना. मतलब देखो, तुम इम्पेयरमेंट लॉस कितने का बताए थे? 50 का बताए. 3 साल के बाद बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई और द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग हैड द इम्पेयरमेंट नॉट अकर्ड वुड हैव बीन 110. ठीक है, मतलब इम्पेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट इतना होता बोल के बता रहा. So reversal of impairment loss is recognized to the extent that it increases the carrying amount of the building to what it would have had been had the impairment not taken place. That is the impairment reversal of impairment loss of 20 million is recognized and the building returned back to 110. मतलब क्या है बोले तो, अब देखो 140 का तुम्हारा बिल्डिंग था, ठीक है, उसका 90 तुम्हारा रिकवरेबल अमाउंट है, तो इम्पेयरमेंट लॉस इतना है. 3 साल के बाद प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए, रिकवरेबल अमाउंट इतने का हो गया और कैरिंग अमाउंट इतने का हो गया. ठीक है. ओके. तो अब तुम्हारा कैरिंग अमाउंट कितने का है? 110.
और रिकवरेबल अमाउंट कितने का है? 120। तो 10 का तुम्हारे को रिवर्सल हुआ ना? हाँ सर। हाँ अब देखते हैं हम लोग ये क्या बोलता है। 140। So reversal of is recognized to the extent that it increases carrying amount of the building to what it have impairment not taken place. Impairment अगर नहीं होता तो that is reversal of impairment loss of 20 million recognized building writing back to 110. 20 कैसे आ रहा है इसको? 140 140। कैरिंग अमाउंट था, 90 रिकवरेबल अमाउंट है, इम्पेयरमेंट लॉस 50 है। 50 बता दिए पहले। 3 साल के बाद रिकवरेबल अमाउंट 120 हो गया, यानी 120। अच्छा, यहाँ से 20 का कम हो गया, रिकवरेबल अमाउंट भी कम हो गया हमारा। एंड ओके, ये क्या रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना था पहले? 90 था ना? 90 से कितना हो गया? 120 हो 110। गया। 30 ओके। 30 बढ़ गया। ओह, तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा 90 से 120 30 बढ़ गया, और वो कितना कम हो गया? 20। एक सेकेंड। कैरिंग अमाउंट उसका जो है वो 100 हो गया। मतलब कैरिंग अमाउंट डिप्रिशिएट होता ना 3 साल के बाद, कैरिंग अमाउंट तो कम होता ही। हाँ। हाँ तो ये डिप्रिशिएट हो गया और वो अप्रिशिएट। अप्रिशिएट हो गया। 90 से 110 हो गया, है ना? हाँ सर। 90 से 110 हो गया तो 30 का इंक्रीमेंट हुआ, और ये अपना 140 से 20 का 110 हो सर। गया। हाँ 20 का इम्पेयरमेंट अप्राइजल हुआ 90 से 110। एक सेकेंड, नहीं 90 उसका रिकवरेबल अमाउंट है ना, तो वो 120 हो गया, सॉरी। वही बोल रहा ना क्वेश्चन में, 90 से 120। तो like the reversal of impairment loss is recognized to the extent that it increases the carrying amount of the building. carrying amount तो बढ़ा नहीं। पहले हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ था? 50 का हुआ था। रिवर्सल कब होगा? जब ये मतलब तुम्हारा जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से। अब रिकवरेबल अमाउंट तुम्हारा कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगा तो रिवर्सल होगा, है ना? इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल किसको बोलते हैं? रिकवरेबल अमाउंट अगर ज्यादा रहा तो कैरिंग ज्यादा रहा तो। So reversal of impairment loss is recognized to the extent that it increases the carrying amount of building to what it would have been had the impairment not taken place. अगर impairment नहीं होता, that is a reversal of impairment loss of 20 is recognized and building return back to 110. तो इधर पर हमारा 140 है, रिकवरेबल अमाउंट इतना है, 50 का हमारा ये बता है, और अभी हमारा रिकवरेबल अमाउंट 120 हो गया, और ये जो है हमारा कैरिंग अमाउंट 10 हो गया। ये मतलब रिवर्सल अगर मैं बोलूं तो पहले का और अभी का देखेंगे तो रिवर्सल होता है। मैं बताता हूं तुम्हारे को क्या हो रहा है। बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट 140 है, अभी मैं बताता हूं, देखो 140 से एंड हैड ए रिकवरेबल अमाउंट कितना है अभी? 90 है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर 140 तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट तुम्हारा 90 है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तुम्हारा 50 का हो रहा है। हाँ सर। अब तुम अपने बैलेंस शीट में कितना बताते इसको? 90 बता। हाँ सर। वो 50 का इम्पेयरमेंट लॉस था तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारा ये कितने का हो गया? 110। 120। 120 का हो गया ना? सर 110 सर, एक बार आप देखो। हाँ हाँ, मेरी बात तो सुनो, रिकवरेबल अमाउंट इतना हो गया अब, क्या? हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है। ठीक है। और तुम्हारा कैरिंग अमाउंट 110। 110। तो अब तुम कितना बताते हो उसको? 110।
यार कभी भी हम लोग रिवैल्यू करते हैं तो ये थोड़ी बताते हैं यार। कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग एंड द इम्पेयरमेंट नॉट ऑकर्ड वुड, अच्छा इम्पेयरमेंट नहीं होता तो 110 होता बोल के बोल रहा। 110 होता था। तो इम्पेयरमेंट अगर नहीं होता तो 110 होता, मतलब ये क्या बात हुई। तो अगर इम्पेयरमेंट होता ही नहीं तो तुम अब कितने में बताओगे तुम्हारे प्रॉपर्टी को, 120 में बताओगे, 120 में बताओगे ना, इसको छोड़ दो। हाँ सर, कितना का बताओगे? 120। 120. हाँ 120 बताओगे ना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया सर, बढ़ इतने गया। से इतना हुआ तो 30 तक का रिवर्सल हुआ तुम्हारा। हम्म, तो अब कितना बचा? 20। 20. 20 क्या है? Imper 30 तक का हुआ, फिर ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 20 क्यों बोल रहा? एक सेकेंड। पहले 140 था, 90 हुआ, तो मैं 90 मेरे बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है। वापस से इसको रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूड अमाउंट पे ही लिखना है मुझे। रिवैल्यू किया तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आफ्टर प्रॉपर्टी प्राइस इन एरिया हैव राइजन एंड द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस टू 120, carrying amount of building had the impairment not occurred would have been 110। तो कैरिंग अमाउंट 90 मतलब 90 से 120 हो गया और कैरिंग अमाउंट 110 बोल रहा है। तो इम्पेयरमेंट लॉस तो है ही नहीं ना उस केस में। तो अगर हम मतलब हमारा कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, तो हमारा 10 का ही हो रहा है मतलब उस केस में। तो कैसे, एक बार मैं लास्ट टाइम चेक कर लेता हूँ इसको। आई जस्ट गेट बैक टू यू, डोंट वरी। 140 है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 90 ड्यू टू falling property values and impairment loss of 50. After 3 years, property prices in the area have risen. Recoverable amount of the building increases to 120 million from 90 to 120. The increases the carrying amount of the building. कैरिंग अमाउंट हमारा कुछ बढ़ा क्या? कुछ भी नहीं बढ़ा ना। तो ये 110 और ये 140 का डिफरेंस कितना है? 30। Reversal of impairment loss is recognized to the extent that it increases the carrying amount of the building. तो carrying amount of building तो बढ़ा नहीं, to what it would have been had the impairment not taken place. impairment अगर नहीं होता तो carrying amount बढ़ रहा कहाँ है अपना? सर पहले 90 था ना सर इम्पेयरमेंट। 90 तो लॉस अपना रिकवरेबल अमाउंट है यार। हाँ, तो अभी 90, 110 हुआ तो ना। अभी सुनो, अभी 90, अभी मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गया है। करेक्ट। नहीं, देखो, the reversal of impairment loss is recognized to the extent that it increases the carrying amount of the building to what it would have been had the impairment not taken. If that is a reversal of impairment loss of 20, building return back to 110, मतलब 90 से 110 हो गया बोल के रिवर्सल 120 का बता रहे हैं। ओके। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है यार। हाँ 90 से हमारा बिल्डिंग 110 हुआ ना कैसे भी। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट, हाँ तो 90 करेक्ट ही है ना यार। करेक्ट है, आ गया। 90 है अभी हमारा बिल्डिंग का, 140 से कितना हो गया? 110। 90। ओके, 50 का इम्पेयरमेंट लॉस है, हाँ सर। 90 बता रहे हैं। अब हमारा वैल्यू कितना हो गया उसका? 110। 120। वो रिकवरेबल अमाउंट है, छोड़ो। अभी हम हाँ, बताना कितने में उसको 110। रिवर्सल करना ना। अभी रिवर्सल तो हो रहा ना। रिवर्सल कैसे होता? अगर तुम्हारा कैरिंग अमाउंट ये होता और ये रिकवरेबल अमाउंट होता तो तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस होता, लेकिन तुम्हारा रिकवरेबल ज्यादा है, कैरिंग कम है, तो रिवर्सल है ना। हाँ सर। तो रिवर्सल
अब जो पहले 50 था तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस, अब तुम्हारा यहाँ से तुम नेक्स्ट कितने में बताओगे उसको? 20 निकाल दोगे, 30 है। तो 20 है ना तुम्हारा रिवर्सल टू द एक्सटेंट ऑफ, इतने से इतना बढ़ रहा है ना, वो वही बोल रहा है ना, अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो वो बोल रहा है कि द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट दैट इट इंक्रीजेस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग हाँ सर। to what it would have had been the impairment not taken place. तो impairment नहीं होता तो उसका क्या होता वैल्यू? 110. 110 होता था, correct. That is a reversal of impairment loss of 20 is recognized and the building returned back to 110. That's it. Okay. ठीक है? इन जनरल रिवर्सल क्या होता है कि जितना अपना जो बड़ा है, मतलब जितना गिरा है उतने से बढ़ गया, उसको रिवर्सल बोलते हैं। कल हम लोग अब ये प्रॉब्लम का सिचुएशन के हिसाब से कैरिंग अमाउंट अभी हम दिखाएंगे तो कितने में दिखाएंगे? 110 में दिखाएंगे ना यार। 110. हाँ सर। तो उतने तक का जो इंक्रीमेंट है वो रिवर्सल है, पुराना वाला 50 तक का जो लॉस हुआ वो 20 से रिवर्स हो गया। ठीक है? हाँ सर। फाइन। सो गो थ्रू दिस चैप्टर वंस अगेन टुडे। चैप्टर हो गया है एंड टुमारो विल डू टैंजिबल एसेट्स। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड कल हम लोग बहुत डिटेल में पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन कर लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये जितना भी रिवर्सल वाला जो भी कॉन्सेप्ट है कल मैं पूरा बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोग को। ओके सर। गॉट इट? ओके सर। ओके, आज इसको पूरा रिव्यू करो and tomorrow see you tomorrow and tomorrow morning we'll take the class. I'm okay right now। मैं तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मेरे को, ठीक है? मतलब मेडिसिन भी लेने का कोई टेंशन नहीं है कल का। ओके ओके सर, टुमारो 9 o'clock ना सर? यस 9 o'clock। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir.